السلام علیکم اور خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں، اور بالخصوص اگر ہم نے دیکھا کہ آل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں آپس میں، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اور گزشتہ دنوں جب ہم نے دیکھا کہ جو اتحادی جماعت اختر مینگل جس میں سے وہ حکومت سے نالا نظر آئے تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ایک جو بہت عام بات ہے اس پورے سناریو، اس پوری جو سیاست کے اندر، کہ مولانا صاحب ایک بار پھر مرکز نگاہ بن رہے ہیں، اور مولانا صاحب ہی تمام جماعتوں کے درمیان یوں لگتا ہے کہ ایک پل اور رابطے یا برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شہباز شریف صاحب سے ملاقات متوقع ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ محسوس کیا جائے کہ مولانا صاحب متحرک ہو گئے ہیں اور تمام جماعتوں کو جو کہ اس وقت حکومت پر تنقید کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی کابینہ کو یا جو وزراء ہیں ان کو یہ کہہ دیا کہ اب بریفنگ سے کام نہیں چلے گا، جو وزیر کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ گھر جائے گا۔ لیکن یہی عمران خان صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا لیڈر، اگر ٹاپ پوزیشن پر اگر آپ کا لیڈر ٹھیک ہے تو نیچے بھی لوگ آپ کے ٹھیک کام کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ بات بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے مجموعی طور کے اوپر، اور اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے کہ کیا پاکستان کے اندر اپوزیشن کبھی اس طرح سے متحد رہی ہے، یا اپوزیشن کے اتحاد کا وہ مؤثر رول کبھی ہم نے دیکھا ہے اس پوری ڈیموکریٹک ایرا کے اندر؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا سحر صاحبہ۔ اور ڈاکٹر رمیش کمار پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ جے یو آئی پہ بڑی ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے، مولانا صاحب لائم لائٹ میں آ گئے، یہ کس چیز کا ہم یہ جو عمل ہے، کس چیز اس سے ہم کیا تشبیہ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے حوالے سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے۔ سیاست پیدل چلنا نہیں ہوتا، یہ تیراکی ہوتی ہے دریا کے اندر۔ اگر آپ پیدل چلتے ہیں اور آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب آپ تیرتے ہیں اور آپ آرام کرتے ہیں تو آپ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ مسلسل عمل کا نام ہے، عمل کے تسلسل کا نام ہے۔ ہم نے دھرنے سے اس عمل کے تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ اگر آپ کووڈ-19 کو درمیان میں سے نکال لیں تو آپ کو ہمارا تسلسل نظر آ جائے گا کہ ہم نے کبھی بھی اپنی تسلسل کے اندر خلل نہیں ڈالا، تو ہمارا وہی تسلسل ہے۔ کووڈ کی وجہ سے تسلسل میں خلل آیا؟ یعنی وہ تو ہوا، یعنی ہم نے قوم کا ساتھ دیا اور ایک پیج پہ ہوئے، اور اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو کم از کم کووڈ-18 تو چلا گیا ہوتا، کووڈ-19 نے اس کو بچا دیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کووڈ-19 نہ آتا تو 18 چلا جاتا۔ آپ کی مراد اس موجودہ حکومت کی؟ ہاں وہ 18 میں جو کچھ آیا ہے نا، یعنی اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ ہاں، لیکن درمیان میں کووڈ آیا تو تھوڑا سا سانس مل گیا، آکسیجن مل گیا ہے۔ اب ہمارا تسلسل جاری ہے۔ میں آپ کے ناظرین کو سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے آفٹر شاکس ہیں۔ دھرنے کی اہمیت بھی ختم نہیں ہوئی، دھرنا بغیر مقصد کے بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ لینے کے لیے آئے تھے یہاں پہ، تو دیکھو یہ تو ہو رہا ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی ہنی مون تو نہیں منایا جا رہا نا، تو استعفے کی بات چل رہی نا، تو ہوتا ہے درمیان میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں لیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے۔ نہیں خیر، درمیان میں کچھ لوگ گارنٹر آ جاتے ہیں۔ کون تھے وہ گارنٹر مصطفیٰ؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں گارنٹر، وہ کہتے ہیں آپ ذرا صبر کرو، تو صبر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تسلسل جاری ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی نئی موومنٹ شروع کی ہے۔ گارنٹرز نے جو ضمانتیں دی تھی وہ پوری ہوئی ہیں؟ تو اس کے لیے تو پھر آپ نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس وقت تو ہمارے گارنٹر یہ تھے۔ اچھا، انہوں نے گارنٹی انہوں نے دی تھی؟ درمیان میں بات یہی کرتے تھے۔ تو جو باتیں تھیں، جو ضمانتیں تھیں، انہوں نے جو دی وہ پوری ہوئی؟ ہاں نا، ہمیں ان سے وہ مطالبہ تو کرتے ہیں کہ آپ بات تو پوری کرو اور اس کا راز کو
अब राज नहीं रहे तो आगे ले जाओ। मैं जो बात समझा रहा हूँ ना वो ये है साहब आपने बड़ी बात कर दी, वो राज कौन से में से? मैं अर्ज करता हूँ हमने जो बात आपके नाज़रीन को समझा रहा हूँ वो ये कि हमारा तसलसल जारी है, नई मूवमेंट नहीं है और हम मिल रहे हैं अपोजिशन से। इंशाअल्लाह इस दफा जो हाथ डलेगा तो वो कमजोर नहीं डलेगा। उसकी वजह यह है कि उनके अपने इत्तेहादी नाराज हो गए हैं। शेख रशीद साहब ने -3 की बात कर ली है। हाँ जी। फवाद चौधरी का लहजा आपको मालूम है। आप नहीं पता फवाद चौधरी के लोगों का नुमाइंदा है, जब वो बात करता है तो कैसा चलता है। फिर उनसे इत्तेहादी वो उनकी एक सफबंदी अच्छा, थी। आपको गारंटी उन्होंने लोगों ने? मैं अर्ज करता हूँ, मैं सफबंदी उनकी भी थी हमारी, उनकी सफ टूट गई है। हम अपनी सफबंदी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये तो 14 वोटों पे खड़े लोग हैं ना, और जैसे ही उनकी गिनती खत्म हो जाएगी ये लोग चले आपने जिस तरफ इशारा फवाद साहब का दिया, उन्होंने लोगों ने आपको वही गारंटी दी? मैं कहा फवाद का साहब का लहजा आपको तब्दील नजर आता है ना, तो बगैर किसी वजह क्या हो गया। अच्छा, आप कह रहे कि फवाद साहब की जो बातें थी वो वजूहात की बिना पर? यानी फवाद साहब भी उस तमाम हालात को देखकर बातें कर रहे हैं ना। मैंने अभी आपने सुना है कि वो -3 की बात कर रहे हैं। अगर माइनस की बात होगी तो -3 होगी। और वो जो हमारे इमरान खान आजकल बातें करते हैं, नसीहतें करते हैं, लगता है ये जिसके बाप जा रहा होता है तो बेटों को नसीहत करता रहता है, ऐसी पोजीशन है। गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात साहब ने जो बात की, क्या वो उसी रात से पर्दा उठने की तरफ एक कदम है? हमारी दरख्वास्त तो है कि वो बातों को कौम के साथ शेयर करें। यानी आपकी दरखास्त पर चौधरी शुजात साहब ने ये बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ उन्होंने कहना है ना, अभी कहना है उन्होंने? अभी बहुत कुछ कहना है, तो हमारी दरख्वास्त ये है कि वो उन चीज़ों को सामने ले आए। तो सर ये जो आपकी एफर्ट्स आप कह रहे हैं कि सिलसिला चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये रफ्तार इतनी स्लो है कि ऐसे होते होते 5 साल निकल जाएंगे पूरे? नहीं, कोविड को आप हटाओ तो फिर ठीक है ना। आप कोविड के दरम्यान में वो करते, कोविड-19 को ना, देखो ना एक चीज आ गई है, कौम पर एक वबा आ गई है, तो आप सियासत तो नहीं करेंगे ना। आप कौम को एक दिलासा देंगे, हौसला। हमने ऐसे ही किया, कहा जी आप सरगर्मी नहीं करे तो हमने नहीं की। आप घर में बैठ जाओ, स्टे होम, तो हमने स्टे होम किया। आप इसको हटाओ तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम तैर रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे। अच्छा चले, ये तो वबा है, जब तक रहेगी तब तक तो खैर उसके साथ चलना नहीं, पड़ेगा। अभी उसकी पोजीशन तब्दील हो गई, पोजीशन तब्दील हो गई है। चले, वबा की या बाकी चीजों की? वो बाकी भी तब्दील हो गई। अब आपको मोबाइल पर भी वो चीज़ें नहीं नजर आती ना, जो पहले कहते थे कि भाई वो कोरोना ऐसा है। कुछ हालत तब्दील हो गई है, तो इसलिए हमने भी सरगर्मी शुरू कर दी। अच्छा, ये रमेश कुमार साहब, मुफ्ती साहब की आपने बात सुनी है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जनाब कि चूंकि कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से कोविड-18 को जो है वो सांस उसको मिल गई, थोड़ा स्पेस मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। अगर ये कोविड को हटा देते तो अब तक ये कोविड-18 ना होता। इशारा आप खुद समझ रहे हैं बेहतर। मैं मुफ्ती साहब प्यारे बंदे हैं और मीठे मीठे अंदाज में बात करते हैं, मगर मैं भी सियासत में काफ़ी पुराना हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ। और चौधरी बरादरान से मेरा आज से नहीं, पुराना 2002 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ कि चौधरी बरादरान का बीच में आना, मौलाना साहब का जो पुराना एक रिलेशन था, उस हवाले से उनको फेस सेविंग दी गई कि फेस सेविंग दें कि किसी न किसी तरीके से मौलाना साहब के बंदे अब थक गए हैं, वैसे ही लोग वापस जा रहे हैं और वो यहाँ से चले जाएं। कोई ऐसी एग्रीमेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैंडेट नहीं था जिसकी बात की जा रही है कि चौधरी परवेज़ लाई ने ऐसे ही जियो के ऊपर कह दिया कि इमानत है। इमानत क्या इमानत है कि किसी के कहने के ऊपर मुफ्ती साहब ने कहा कि चौधरी शुजात की तरफ बात की है। मुफ्ती साहब ने कहा गारंटियर जमानत उन्होंने दी हमें, और जो चौधरी शुजात की आपने गुज़िश्ता रोज की बात भी सुनी, वो भी चौधरी साहब ने बेसिकली, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो भी एक तरह यानी टूवर्ड्स आगे जो चीजें होनी है उसमें से एक स्टेप है जिसमें से पर्दा उठाया, थोड़ा सा पर्दा उठाया भी चौधरी शुजात की जानिब से। फरीद, मेरे ख्याल में आप सहाफत से जैसे आए हैं और ये तीनों जो पैनल में आज बैठे हैं, और सबसे पुराना आप मुझे जानते हैं और आपको पता है कि मैं सच ज़्यादा बोलता हूँ और जो हकीकत होती है उस चीज़ों को बताता हूँ कि ये जो चीज़ है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जैसे पहले मौलाना साहब के साथ किया कि हाँ आप चलो मैं आ रहा हूँ, और जैसे नहीं आए, ऐसे अगर दोबारा मौलाना साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत सियाने सियासतदान है और एक मरतबा जो आदमी खता खाता है तो दूसरी मरतबा वो खता नहीं खाएगा।
مگر جو ہے وہ اس وقت جو بھی یہ مولانا صاحب باتیں کر ایکٹیو رہے تو ہیں بہت ہے initiative لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب کچھ ایکٹیو فرق تو نہیں بہت پڑے ہے۔ گا کچھ میں صرف آپ کو بتاؤں ہمیں نہیں اپوزیشن والے متحد ہیں نہیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے نہیں اپوزیشن کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لے کے 172 بندے جو ہے وہ اکٹھے کر سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے پاس 1.70 کروڑ ووٹرز کا جو ہے پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان 5 سال کے لیے ہے رہی بات ہماری پرفارمنس کی میں سمجھتا ہوں ہماری پرفارمنس بہتر طریقے سے جا رہی ہے اگر پرفارمنس میں کوئی اثر ہوا تو اس کا رزلٹ 5 سال مناتی 2 سال گزر چکے 3 سال اور گزرنے کے بعد جو بھی ڈیسیشن ہوگا یہ ڈیسیشن عوام کرے گی یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں یہ پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی مینڈیٹ ہے ایکسپٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی مرتبہ جو ہے وہ کشمیر کمیٹی سے بھی باہر ہیں اور پہلی مرتبہ وہ اسمبلی سے باہر ہیں جس کی وجہ اگر مولانا صاحب کو اتنی یقین ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان یہ ایسے ہو صاحب سکتا ہے تو مولانا صاحب کے اپنے بندے جو بیٹھے ہیں لیکن مولانا صاحب استعفیٰ دلا دے آپ مولانا صاحب کی اگر آپ پالیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو اس چیز پہ تو اپریشیٹ پھر آپ کریں گے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی مولانا صاحب تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مولانا صاحب رہے اور ابھی بھی مولانا صاحب جو ہیں ان پارٹیز کے ساتھ اور دیگر پارٹیز میں جو رابطہ کاری کا جو ایک کردار ہے وہ بڑے احسن طریقے سے انجام وہ دے رہے ہیں فرید 3 بندے پاکستان کی سیاست کے اندر ان کو ہر قسم کا موڑ آتا ہے اس میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب ہے نمبر 2 پہ جو ہے وہ چودھری شجاعت ہے نمبر 3 پہ فضل الرحمان صاحب ہے یہ 3 بندے جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بالکل منے ہوئے سیاستدان ہیں کہ وہ موڑ جو ہے وہ اس طریقے مگر اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نا جو پہلے سیاست ہوتی تھی وہ اداکاری ہوتی تھی جس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی تھی اب سیاست ایک اویئرنیس والی سیاست آ گئی ہے اب سیاست ایک ایمانداری والی سیاست آ گئی ہے اب سیاست ایک ریفارم والی سیاست آ گئی ہے اس سیاست کے اندر ان تینوں کی جو پالیسیز ہیں جو ماضی میں چلتی تھی اب وہ چلنے والی نہیں ہے مولانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا میاں صاحب کے فیور میں جب بات کرنے لگے کہ الیکٹڈ ایسے آپ کیسے چھوڑیں گے 5 سال پورے کریں گے مولانا صاحب کم سے کم اپنی اس تقریر کو یاد کریں کہ مولانا صاحب نے کیا بولا تھا آج بھی اگر آپ اس حکومت کو اگر آپ سلیکٹڈ کہیں گے تو میرے سامنے 2002 کی بھی الیکشن تھی ہے میرے سامنے 2008 کی بھی ہے میرے سامنے اور میں ہر حکومت کے اندر رہا ہوں مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو یہ باتیں چھوڑیں مشرف کے پاس بھی بیٹھتے تھے یہ مولانا صاحب یہ ہر چیز کا پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں میں بھی کہوں گا کہ پردے میں رہنے دیں نہیں پردہ تھوڑا سا آپ بھی اٹھائیے نا یہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پردہ بھی اٹھے گا شجاعت صاحب نے تھوڑا سا پردہ اٹھائے میں چاہوں گا آپ بھی تھوڑا پردہ اٹھائیے میں سیر کامران صاحبہ کی طرف سے آتا ہوں مفتی صاحب تو ہم سے محبت کرے یا نہیں کرے مفتی صاحب ہم سے محبت کرے یا نہیں کرے ہماری تو مفتی صاحب سے جو ہے محبت ہے کیونکہ مولانا عطا الرحمان کا میرے اوپر ایک احسان ہے میرے اوپر احسان ہے اور میرا عطا الرحمان کے اوپر احسان ہے دونوں کا اور چلے سر وہ تو انڈیویجول بیسس کے اوپر ہے لیکن جہاں تک بات پارٹی سیاست اور دوسری چیزوں کی ہے مفتی صاحب یا مولانا صاحب تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک انڈے پورا ٹوکرا ہی جو ہے وہ نکالنا پڑے گا سیر صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا اگر ٹوکرے کی بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب شروعات کریں جو اپنے 5-7 ایم این اے سینیٹر ہیں ان کو تو کم سے کم ریزائن دلائیں ان کو تو چلو ایم این اے سینیٹر کو بھی چھوڑو ایم این اے کو پہلے ریزائن دلائے پھر جو بات کریں ٹوکرے کی بھائی ٹوکرے کے اندر تو وہ بھی بیٹھے ہیں نا 340 جو ٹوکرا ہے اس کے اندر اگر ان کو اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے تو کم سے کم ان کو پہلے ریزائن دلائیں تو پھر ہم بھی کہیں کہ یار مولانا صاحب جیسا ہوشیار بندہ جو ہے وہ 7 بندوں کو ریزائن کیسے دلا کے گیا ہے سیر صاحبہ جو بات پھر ہمیں سمجھ میں آئے سیر صاحبہ یہ جو اس وقت جو بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکٹیویٹی کی جس ٹائپ کی ہے اور جو مفتی صاحب نے بھی بات کیا آپ نے ڈسکشن اور گفتگو بھی سنی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی بھی یا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رابطہ کاری کے لیے مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے وہ واقعی اس وقت اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے وہ بہت اہم ہے اور اگر مولانا صاحب سائیڈ پر ہو جائیں یا نکل جائیں تو کیا پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتیں آپس میں ایک نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید سب سے پہلے تو مجھے کچھ نہیں پتا چلا رمیش کمار صاحب نے کیا کہا کیونکہ ان کی ڈسٹارٹڈ اور ریٹرن آواز تھی بہرحال میں
इंतजार ही करी थी कि मैंने कहा शायद आधा प्रोग्राम गुजरने के बाद मेरी बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मौलाना फजल रहमान एक सीजन पॉलिटिशियन है और हर पॉलिटिशियन का एक अपना वेटेज होता है और उसमें मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने आगे बढ़कर एपीसी के लिए जो है तमाम अपोजिशन पार्टी से राब्ते किए वो काबिल तहसीन है और हर पार्टी जिसका वोट बैंक है उसकी अपनी एक अहमियत है। मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार को, उनकी अहमियत को, उनकी जो है तजुर्बे को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मैं ये समझती हूँ कि कल जो चौधरी शुजात साहब ने कहा वो भी काबिल गौर है। यानी वो मिलते किसी और से हैं, उन्हें भेजता कोई और है। जो कोई और है ये बड़ा तवज्जो तलब है कि कोई और का क्या रोल है। और इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब जो -1 और माइनस की बातें कर रहे हैं ये कहीं और से नहीं आ रही, आप यकीन करें ये अपोजिशन से नहीं आ रही, ये आवाजें इनके अपने अंदर से आ रही हैं। और क्यों आ रही हैं ये भी मेरा में इनसे ये पूछेंगे किसी और नहीं से सर साहबा, तो ये किसी सर साहबा और मैं आपसे कोई और- पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये दोनों जमातें -1 के बिल्कुल अगेंस्ट है। देखिए ये बातें जो है कि -1 या -2 या -3 जिसकी तशरीह जो है खुद इनकी काबीना के अफराद करेंगे, जो इनके मिनिस्टर्स, इनके सिटिंग मिनिस्टर्स जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो चौधरी फवाद हो, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब खुद हो, चाहे वो फैसल वाडा की धमकियां हो, वो तमाम बातें इनके अंदर से आ रही हैं। देखिए पीपल्स पार्टी जो है जमहूरी रिवायात पे जो है यकीन रखने वाली पार्टी है और जो भी चीज जमहूरी अमल के जरिए होगी वही जो है मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगी। ये कोई और किसी तौर जो है ये नहीं चलेगा। ये अलग बात है नहीं, कि जिस आज तरीके से बात की मुफ्ती साहब ने जो बात की धरने वाली बात की, उन्होंने कहा जी उस वक्त तो हम आए थे, फिर हमें गारंटियर्स ने कहा कि जी ठीक है थोड़ा सब्र करें, आगे चलें, चीजों के अंदर कोविड की वजह से थोड़ा गैप आ गया लेकिन सिलसिला चल रहा है। तो ये जो मौलाना साहब की स्ट्रगल अलॉन्ग विद पीपीपी, पीएमएलएन और जो दीगर पार्टी जो कि इस गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही हैं, ये जो स्ट्रगल है ये विद इन द पार्लियामान के अंदर चेंज लाने पर यकीन रख रही हैं या ये धरने या जबरदस्ती इस्तीफा लेने पर यकीन रख रही है? देखिए बात ये फरीद, बात ये है कि आज जो है ये तहरीके इंसाफ नाम की जो जमात कोई और किसी तौर क्रिएट की गई थी, ये आज तहरीके अजाब बन गई है। ठीक है, अब आप ये कहें कि जी पाकिस्तान से हम सबको मोहब्बत है, तमाम अपोजिशन पार्टीज को मोहब्बत है, हम बैठ के तमाशा देखें कि ये पाकिस्तान के हर इदारे को, हर पिलर को कमजोर करते जाएं और हम खामोशी से तमाशा देखें, ऐसा नहीं हो सकता। मशावरती अमल जारी है, अपोजिशन पार्टीज का एपीसी होगी और ये देखा करेंगे जाएगा क्या? कि आप लोग करेंगे क्या? कैसे? यानी आप अगर कह रहे हैं कि तहरीक आजाद बन गई है तो ये कैसे आप कैसे करेंगे? देखिए हर आईनी ऑप्शन, वैसे तो मुझे जो आज जो हालात लग रहे हैं ना, मुझे लग रहा है शायद हमें तो उंगली हिलाने की भी जरूरत ना पड़े। मुझे तो लग रहा है कि ये एक ऐसी इमारत है जो खुद अपने बोझ तले ढह रही है। अब तो इसके अंदर इसके इत्तेहादी पहले बातें करते थे, फिर कोई हर वीडियो लीक अपोजिशन को वैसे हुकूमत यही लगती है सर साहब। नहीं, बात ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी गवर्नेंस, आपकी मईशत, आपकी खारजा पॉलिसी अपनी जगह पर सारे इश्यूज अपनी जगह पे, बट माय क्वेश्चन इज बट मेरा सवाल ये कि आप लोग करेंगे कैसे? विद इन द पार्लियामान चेंज करेंगे, इनके इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएंगे, कैसे करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो बाहिमी मशावरत पर यकीन रखती है। ठीक है, ये अपोजिशन की एपीसी हो रही है, उस एपीसी के अंदर कायदीन तय कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि हम विद इन काबीना तब्दीली ले आए, लेकिन ये देखना ये होगा कि जो किसी तौर भेजे हुए लोग हैं, ये जो कोई और भेजे हुए लोग हैं, ये जो एलियन है पार्लियामेंट में, इनकी मौजूदगी में क्या निजाम वाकई बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं तो ऑपोजिशन मिलेगी कैसे? ऑपोजिशन तो यहाँ पे अपने अपने केसेस के ऊपर है। आप नहीं समझती कि ऑपोजिशन की अपनी मजबूरियां, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो? देखिए ये तमाम टैक्सेस में ना, ये तवज्जो हटाने वाली या टेंशन डाइवर्ट करने वाली, ये केसेस खड़े करने वाली, ये सब फेल हो चुकी हैं। अब तो इनके अपने केसेस निकल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इनके जो है वो अजमल वजीर साहब, इनके मजहबी अमूर के मिनिस्टर, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके अंदर 270 बिलियन की बेज़ाब्त किया, यानी अभी तो इनको गाय भैंसों का भी हिसाब देना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा गाड़ियां बेच के गाड़ियां क्यों खरीदी। ये बहुत जो इन्होंने कौमी
जो एक समझते हूँ कि जो असासों को नुकसान पहुंचाया है, जो कौमी साख को नुकसान पहुंचाया है, जो कौमी तौकीर को नुकसान पहुंचाया है, उन सबका सर जवाब साहब इनको सारी देना है। चीजें ये अपनी बात जगह पर, एक हम- ब्रेक मैंने लेनी है जरा सा। मैं आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे रुकता है और वहीं पे मेरा सवाल है कि ये सब होगा कैसे, आईनी तरीक़ेकार के जरिए या फिर जबरदस्ती धरना, आजादी मार्च, क्या होगा? या फिर क्योंकि गवर्नमेंट से अगर इस्तीफे का मुतालबा है तो वो इस्तीफे पे तो कोई भी गवर्नमेंट इस्तीफा नहीं देती है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, जो बात मैं कर रहा हूँ बार बार कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप या JUI किस चीज़ पर यकीन रखती है कि तब्दीली आईनी तरीक़ाकार से होनी चाहिए या फिर आज़ादी मार्च या धरने की जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ? सियासत है ना, इसमें तो आप तमाम ऑप्शन पर गौर करेंगे ना। एक हमारी पहली तरजीह है कि हम नए इलेक्शन कराएं। ये फ्रॉम डे वन हम कह रहे हैं कि नए इलेक्शन हो। नए कौन करवाएगा? मतलब ये तो एक और सवाल है, लेकिन ये कि हम नए इलेक्शन की बात करते हैं, मुतालबा आपकी तरफ से। हमारा ये बता। ठीक है। बिलफर्ज तकदीर अगर पार्लियामेंट के अंदर एक तब्दीली आ जाती है तो फरीद, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। वो भी कबूल है, जाहिर है आपने तो ऑप्शन खुले रखने हैं ना। यानी वो तब्दीली किसकी होगी? वजीर आजम साहब की? देखो, और किसकी होनी चाहिए? सिर्फ वजीर आजम साहब आप कहते हैं? नहीं, इमरान खान साहब मैं हट अर्ज जाए ये तो करता हूँ, हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि हम इलेक्शन की बात करते हैं, पहला मुतालबा होगा। लेकिन बिलफर्ज तकदीर एक मौके पर हमें ये बता दिया गया कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं है और हम इसको हटाते हैं। तो देखो, जब दो बड़ी बीमारियों में, बुराइयों में आप मुब्तला होते हो तो छोटी को इख्तियार करते हो ना। ये भी ऑप्शन है, हमारा सारा ऑप्शन। हम जो कहते हैं ये इस्तीफा दे, ये भी आईनी है। मैं माफी चाहता हूं, आपने कहा जबरदस्त पसंद नहीं, हमने धरना दिया तवज्जो हासिल करने के लिए कि इलेक्शन फेक है या इलेक्शन ठप्पों की है। हमने इसलिए जबरदस्ती नहीं की कि हम पकड़ के आदमी को मारेंगे और इसी, ऐसा नहीं। हमने तवज्जो हासिल करनी थी मीडिया की, आवाम की, कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। वो भी आईन ही यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो मेरा आईन, मैं एक मिनट, मेरा आईन ये नहीं कहता कि आप किसी नालायक आदमी को बिठा और 5 साल उसका इंतजार करो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर हम दबाव डालकर इस्तीफा ले लेते हैं या नए इलेक्शन कराते हैं तो ये भी आईनी है। और अगर पार्लियामेंट के अंदर भी कोई बात आती है तो उसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम तमाम ऑप्शन को आजमाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपने हदफ तक पहुंचेंगे। आपने कहा तवज्जो हासिल करने के लिए आपने इधर ये जो मार्च था ये हुआ, तो फिर उसका मतलब है कि 2013 के अंदर 14 में जब इमरान खान साहब हलकों के हवाले से, 4 हलकों के हवाले से आए थे, उसको भी आप फिर ठीक करार देते हैं? उन्होंने वो ठीक किया था उस वक्त? मैं दोनों में फ़र्क महसूस करता हूँ। जब कोई अवामी हुकूमत आती है, उसके खिलाफ धरना दिया जाता है तो और बात होती है, और जब ठप्पों की हुकूमत आती है और अवाम आती है तो और बात। दोनों फर्क तशरीह आप कर रहे हैं ना। वोट तो अवाम ने दिए ना। नहीं, माफ कीजिए, इसमें मैं अवाम ने इसी वोट को नहीं नहीं मानता। अगर अवाम का वोट था तो हम इसको सैल्यूट करते। अवाम का वोट नहीं था। फार्म तो किसने वोट डाले? कमाल है यार, आप बिल्कुल बेखबर है, आपको नहीं पता ये पोलिंग एजेंट क्यों निकाले गए, फार्म नंबर 14 क्यों नहीं दिया गया, लोगों के वोट क्यों नहीं गिने गए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जेली था। इस पार्लियामेंट में आप नहीं है, पार्लियामेंट में हैं और हम ये भी समझते हैं कि पार्लियामेंट को छोड़ना भी चाहिए, लेकिन हमारी क्यों नहीं छोड़ा? हमारी में कब छोड़े ना। ये ताश जब तो आप इस मैंने, पार्लियामेंट को नहीं मैं मान कहता हूं ताश मैंने फेंकना या आपने फेंकवाना है। नहीं। देखो, आप कुछ रखते हो ना, एक मौके ऐसा है कि हम ये भी फैसला कर लेंगे, लेकिन ये तो हमारी हिकमत अमली है कि हमने कहाँ इस्तीफा देना है और पार्लियामेंट को छोड़ना है। आप माहौल बनते हुए देख रहे हो। मुझे तो नहीं लग रहा कि 2-3 महीने इस हुकूमत को और हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब इनकी नालायकी की वजह से इनका अमल देगा और आप कहेंगे, इसको आप नोट करें कि आपने ठीक कहा था। जो आपके वोट, आपके मेंबरान, जो आप लोग जो पार्लियामान में बैठे हैं, क्या वो वोट भी अवाम के नहीं है? भाई कहीं कोई बच गया बेचारा ना, कहीं तो कोई बच जाता तो है ना। देखो ना, आपके पास बहुत बड़े हल्के होते हैं, हर जगह तो आप फांसी नहीं लगाते ना। मोटी मोटी जगह पर आप ठप्पे लगा लेते हो। पहले एक और तरीका था, अब और पहले जी हर एक एमएलए को वालों को 20-20 हजार वोट डालो। अब ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि वो वोट आवाम का नहीं गिना गया और यहाँ और वोट डाले गए। तो आवाम को आवाम से क्यों डरा जाता है? ये पाकिस्तान की आवाम है, उनको हक हुक्मरानी देना। आप हक हुक्मरानी दे, हम कबूल करेंगे। अगर इन अवामी वोटों में हमें हिस्सा नहीं मिला, हम घर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आवाम हमें लाती है तो आपको हमारी शक्ल क्यों बुरी लगती है? सहर साहबा, जो ऑप्शन मुफ्ती साहब ने यहाँ बयान फरमाए, आप भी इन्हीं ऑप्शंस के ऊपर एग्री करती हैं कि यही ऑप्शंस होने चाहिए?
देखिए बहरहाल ये तो मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब का जाना जो है वो नागुज़ीर है, इसलिए कि ये आवाजें अब इनके अपने अंदर से आ रही हैं और मैं ये समझती हूँ कि जितना नुकसान ये पहुंचा चुके हैं, मुझे ये भी शक है कि शायद ये खुद किसी दिन फरार हो जाए, तो मैं कहूंगी कि वो वक्त आने से पहले इनका नाम जरूर ईसीएल पे डाल दिया जाए। अब बाकी पीपल्स पार्टी का आपको ये पता है कि बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि हर आईनी ऑप्शन को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पे पहुंचाया जा चुका है कि जिसके बाद अब अपोजिशन जमातें खामोश नहीं रह सकती। हमें अपनी आवाजें जरूर बुलंद करनी है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर तब्दीली पे तमाम अपोजिशन पार्टी मुत्तफिक होती हैं या नए इलेक्शन से मुत्तफिक होती हैं। ये तो अब समझ में इनके जो साथ बैठे हुए लोग हैं उनको भी समझ में आ गया। अब जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अंदर तब्दीली, जो ये कहते हैं जी -1, तो आप ये देखें जिस किस्म की आवाजें और लहजे इनके आते हैं कि तो मरने मराने जो है और जो है वो जान लेने की बातें करते हैं, जो फैसल वाडा ने कहा। तो इस किस्म के मैं समझती हूँ कि इस किस्म के एक इंतशारी मोड में ये है। तो सबसे पहले तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का नाम जो है ईसीएल पे डाला जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो तबाही फैलाई है। लेकिन लगता ये है कि जो साथ बैठे हुए लोग हैं उनको समझ आ गई, लेकिन ऑपोजिशन को शायद अब तक समझ उस तरह से नहीं आई है, यूं महसूस हो रहा है। वैसे नहीं आप मतलब मैं ये बताऊं, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हम इमरान खान अहमद नियाज़ी की साहब की तरह से मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, हम ये कहेंगे कि आप बिजली के बिल ना दो, हम ये कहेंगे कि हुंडी से पैसे भेजो, तो ये अपोजिशन पार्टी नहीं करेंगी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी जो है आइन के अंदर तरीकेकार दिए हुए हैं कि एक शख्स जब एतमाद का वोट खो देता है तो वो अपने मनसब से हट जाता है। हम ये देखेंगे कि क्या ये जिस किस्म का जोड़ तोड़ हुआ है उसमें हमारे पास ये तादाद रह जाती है। दूसरी सूरत ये है कि मुझे जो इस वक्त नजर आ रहा है कि जिस हद तक अंदर से टूट फूट शुरू हो गई है, ये खुद फरार के चक्कर में है कि अभी जो आवाजें बाहर से पहले आती थी वही मैं बता रही हूँ कि वो अंदर से आ रही हैं। और ये तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन कब लेकर आ रही है वैसे सहर साहब? देखिए बात यह है कि अभी आपको पता है कि एपीसी के लिए जो है कोशिशें हो रही हैं, जैसी तारीख सामने आती है। और बीच में पहले शहबाज शरीफ साहब बीमार थे, हम इंतजार कर रहे थे, हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी के उनकी बातचीत भी हुई है फोन पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मिले हैं, बाकी जमातों से भी राब्ते हैं, मेंगल साहब भी मिले हैं। तो यकीनन जो है इसमें पेशरफ जारी है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान से बचाया जाए। आपको भी ये लगता है मुफ्ती साहब ने जो बात की है कि मुफ्ती साहब कहते हैं 2 से 3 महीने की बात है, मजीद अब ये मजीद हुकूमत नहीं चल सकती, आप इस मुफ्ती साहब की इस बात को आप भी उसी तरह से परसीव कर रही हैं? मैं तो ये समझ रही हूँ कि 2 से 3 महीने भी बहुत ज्यादा है। 2 से 3 महीने के अंदर ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात का आप मुझे ये बताएं कि आज इथोपियन एयरलाइन आपके पायलट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपकी करेंसी अफगानिस्तान से नीचे गिर चुकी है। आज आपकी एयरलाइन दुनिया के अंदर जो है वो आप आइसोलेट हो गए। आपकी खारजा पॉलिसी आपकी ऐसी है कि आपने आइसोलेशन में चले गए। आप अगर आप अपनी गवर्नेंस, आप अपनी मईशत का हाल देखें तो ये उस नहज पे पहुंच गए हैं कि आप ये देखें कि बेरोजगारी आप देखें कितनी बढ़ गई है, आप ये देखें कि गुर्बत की सतह से कितने लोग चले गए। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ पुराने मंसूबों के नाम तब्दील करके और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डाका डाल के ये एक ऐप मुतारिफ करा रहे हैं कि जिस शख्स को भूख लगे वो पहले जो है वो मोबाइल फोन खरीदे स्मार्ट, फिर 4G ले, फिर उसके बाद वो एप्पल प्ले से जो है वो डाउनलोड करे जो है ऐप, और उसके बाद देखे कि एक वक्त की रोटी कहाँ मिलती है। चले डॉक्टर साहब, इस कैफियत में हुकूमतें नहीं चल सकती, इनके जाने का वक्त आ गया है और इनका जाना ठहर गया है। अब ये भुरभुरी दीवार है, इसकी फाउंडेशन तो पहले नहीं थी, जो लेकर आए वो भी मेरे ख्याल में पछता रहे हैं अब, तो अब वो भी पीछे हट जाएंगे, वो भी कब तक एक भुरभुरी जो है वो एक दीवार को फट्टे दे के खड़े रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका जाना ठहर गया है, मुफ्ती साहब भी यही कह रहे हैं, सहर साहब अब यही कह रही है, और 2 से 3 माह भी बहुत ज्यादा है। मैंने दोनों की बातें सुन ली है। पहली चीज़ तो ये कि जो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का ताकि हमारी करेंसी गिर गई है, मुझे ये बताएं कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद ये डिक्लाइन शुरू हुआ है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह से हमारी करेंसी जो है वो डूबती गई, हम कर्जों में डूबते गए। पाकिस्तान स्टील मिल वाले जैसे इदारे जो प्रॉफिट में थे वो लॉसेस में चले गए, PIA लॉसेस में चले गए। कब हुआ, तो अपने गिरेबान में ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि APC की जो बात की जा रही है, APC कोई नहीं हो रही है। आसिफ जरदारी साहब APC से पहले अमेरिका चले जाएंगे,
शहबाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जरदारी साहब इलाज कराने जा रहे हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बड़ी खबर दे रहे हैं आप। तीसरी चीज ये मैं बात कर लूं ना, मैं बात कर लूं। नहीं, ये ऑन कर रहे हैं आप, ये आपने बड़ी खबर दे दी है, ये आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। मैंने आपको बता दिया जो बता रहा हूँ। और 5 साल देखिए, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप अपनी बात के टाइम के ऊपर आपने भी सारी गलत बातें की, मैंने सुन ली। डॉक्टर साहब, ये खबर है या तज्जिया है? ये डॉक्टर साहब, ये खबर है तज्जिया है? नहीं, खबर है और ये खबर है, बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी। तीसरी चीज ये कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अगर ये कहते हैं कि भैया आप तवज्जो दिलाए नोटिस के तौर के ऊपर आए, तो आपके इस तवज्जो दिलाए नोटिस के ऊपर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अमल किया? कितने एमएनएज उन पॉलिटिकल पार्टीज के मौलाना फजल रहमान के हाथ के ऊपर लब्बैक का, और कितने पीटीआई के लोग जो है वो आपको लब्बैक कह के और आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव किया। मुझे एक बात और बता दें डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को यहीं से और आपने दे दिया। अब मुझे एक बात और बता दें, आपने कहा जरदारी साहब भी यहां से एपीसी नहीं होगी, जरदारी साहब भी चले जाएंगे, शहबाज साहब भी चले जाएंगे। मुझे बता दें, इमरान खान साहब क्या तारीख में नाम रकम कर देंगे कि वो 5 साल बहैसियत वजीर आजम पूरे करेंगे अपने? ये मुझे बता दें। चलें आज ऑफ कोर्स मैं आज आपको बताऊं कि 5 साल पूरे इमरान खान के हैं ही हैं। आगे के 5 साल की बात करें और मुझे वो 5 साल भी इमरान खान के नजर आ रहे हैं। जो रिफॉर्म होने जा रहा है, मुझे ये बताएं, एक ऑडियो कॉल अजमल वजीर की मिली, 2 मिनट उसने लगाए, 2 मिनट लगाए, उसी टाइम जो है वो उसको फारिग कर दिया गया। आप बाबा इंक्वायरी आपके खिलाफ होगी। राना मशहूद मेरा दोस्त है, उसकी एक मर्तबा ऐसी वीडियो मिली थी, क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ था? पीपुल्स पार्टी के सिंध के अंदर तो रोजाना ऐसी ऑडियो वीडियो मिलती है, क्या किसी के ऊपर आया? ये सारी बातें, अली मादल के ऊपर अगर नैब का भी एक्शन शुरू हुआ है, कोई हमारी तरफ पार्टी से कोई बयान आया है कि अली मादल हमारा ईमानदार बंदा है? ये भाई जो है तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी है, आप बताओगे क्या है, सही है या गलत है? अगर फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के हवाले से बात आ रही है, अली जैदी पूरा चिट्ठा लेके आ गया है। ये हुकूमतें इमरान खान के हिसाब से नजरिए के ऊपर चलेंगी, ईमानदारी के ऊपर चलेंगी। अली जैदी साहब को अपने पोर्ट्स एंड शिपिंग की रिपोर्ट देनी चाहिए थी ना यार, वो किधर पड़ गए यार? वो पोर्ट्स एंड शिपिंग की कारकर्दगी तो बताएं। क्वेश्चनेबल है, देखो अली जैदी साहब क्वेश्चनेबल है और उनसे कैबिनेट में इन हवाले से पूछा भी जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी सारे मिनिस्टरों को, सेक्रेटरी को कहा है। आपने जो अपने इंट्रो में भी एक बात की थी कि लीडरशिप ईमानदार होती है। देखो लीडरशिप कोशिश ये करती है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के ऊपर लगाए, कि जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो मेरी विजन है, वो कंप्लीट हो। चले, मैं उसके अंदर कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, ठीक, उसके अंदर कुछ गलतियां जरूर हुई हैं जिसकी वजह से वो कंप्लाइंस पूरा नहीं हुआ है। मगर आज भी उसकी नेक नियति, आज भी उसकी सोच वही है कि मुझे मुल्क को सही डायरेक्शन के ऊपर चले। मैं आपकी इसी बात को लेके चलता हूं मुफ्ती साहब की तरफ। मैं आपने जो एक बात की मुफ्ती साहब, ना सिर्फ इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले 5 साल की वो तैयारी करके बैठे हैं। ये तो एमएनए है, मेरे ख्याल से अभी तक ये कानून साजी नहीं है कोई आदमी ख्वाब देखे तो पाबंदी हो। तो ख्वाब देख सकते हैं, इससे अच्छे और सुहाना ख्वाब दे सकते हैं। पार्टी के अंदर है सर, तो बोल तो रहा हूँ ना। देखो इनसे पूछो कि आपके इत्तेहादी क्यों उठ गए। सर आपने ख्वाब नहीं देखा था इस्तिखारे वाला? कि देखो मैंने देख लिया तो वो ख्वाब अब अमल हो रहा है ना उसमें। मौलाना साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मौलाना साहब बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म। नहीं ये मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। यही तो कह रहा हूँ ना, बनने जा रहे हैं। हाँ मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे यार। ये आपको क्यों अजीब लगता है? 2020 में 20 नहीं 21 है या 2 है, लेकिन है तो है। हाँ मैं आपको ये बताऊँ, अगर मेरा एमएनए अगर वो ख्वाब देखता है तो इस पर क्या है? इनसे ये पूछो कि शेख रशीद की बोली किस तरह बोली जा रही है। इनसे पूछो कि आपका साथी है जिसको कहा जाता है फवाद, ये किसके खिलाफ बोल रहा है। उनसे ये पूछो कि 11 एमएलए ने अपने इस्तीफा तैयार क्यों रखे हुए हैं। इनसे पूछो क्यों वाले किस तरह बोलते हैं, बाप वाले किस तरह बोलते हैं। बोलो सुने ये अख्तर मिंगर किस तरह बोलता है। भाई तो आप तो जमहूरी आदमी हो यार, कल किसी और जमात में होगे। आप ये करो, जब आपके पास एतमाद नहीं है तो जान छोड़ो। लोगों की जान क्यों आपने बर्बाद की हुई, जान छोड़ो। इंशाअल्लाह हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनकी नाअहली से ये हुकूमत हमारी जोली में आकर गिर जाएगी।
आप देखें अभी आपकी जेली से मुराद मौलाना साहब की जेली में अपोजिशन है और अपोजिशन के कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी सफ जो है ना वो मजबूत है, इनकी सफ टूटी हुई है। मुझे बता दिया जाए कि कौन सी अपोजिशन की छोटी जमात अपोजिशन से भाग गई है? नहीं भागी, इनके बहुत सारे लोग भाग गए। ये तज्जिया गलत है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो आज रमेश कुमार साहब इस तज्जिए पर आ जाए ना कि हमारे अपने लोगों ने हमें आदम एतमाद किया, अपने लोग ये देखो सर, जहां अपोजिशन को मुत्तहिद होना था सेनेट इंतखाबात के अंदर, दीगर मामलात पार्लियामान के अंदर, वहां तो अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाती। आप कैसे करेंगे झोली में आके गिर जाएगी? मैं कहता हूं आप मायूस क्यों हैं? अगर इस वक्त अगर हम नहीं ले सके वो गाड़ी जो चेयरमैन सेनेट की थी, तो आप वज़ीर आज़म की गाड़ी ले लेंगे ना? ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम वो नहीं लिख सकते तो ये भी नहीं ले सकते, लेंगे इंशाल्लाह। जब इनके पास पॉइंट वो पॉइंट नहीं रहेगा जो सुरख पॉइंट है और ये गिनती नीचे आ जाएगी, फिर भी इनका ये ज़मीर बर्दाश्त करेगा ये वज़ीर आज़म बन जाए, तो आप क्यों नहीं इंतजार करते? एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएंगे, लोग हट जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या ऑप्शन है मुफ्ती साहब? ऐसे यही कि इनके लोग गिरेंगे, नाराज होंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी गिनती ऊपर चली जाएगी, इनकी गिनती नीचे हो जाएगी। वज़ीर आज़म तो जबरदस्ती तो नहीं बन रहा। तब्दीली पार्लियामान के अंदर से ये भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा पहला मुतालबा वही है कि हम इलेक्शन कराएंगे और खुदा न खास्ता -1 पर कौम का इत्तेफाक होता है पार्टियों का, इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। जी रमेश साहब, ये बड़ी बात जो इस वक्त मुफ्ती साहब कर रहे हैं, मैं आपकी पहली देखें ये आपकी इजाजत से अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं, जो कानूनी इनका हक है। मगर ये कहना मुझे 2008 से 2013 का जो वक्त था, उस 2008-13 में भी रोजाना कहते थे आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, मगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये था कि जिसका जो मैंडेट है वो पूरा हो। आज बलोचिस्तान के मसाइल, 2002 में जाम यूसुफ था, बलोच नेशनल था, उसके बाद रईसानी आया, बलोच नेशनल था, उसके बाद अब्दुल मालिक आया, बलोच नेशनल था। ये बलोचिस्तान का जो इशू है वो एक पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं आपके लोग गिरेंगे, मुफ्ती साहब कह रहे हैं आपके लोग गिर के इनकी झोली में आ जाएंगे, इनके नंबर्स ऊपर जाएंगे, आपके नीचे चले जाएंगे। ये इनका ख्वाब है, ये इनका ख्वाब है। मैं समझता हूं कि आज आप एक काम करो, फरीद रईस आप एक काम करो, अगर आपको हिट अपना जाना है ना, आप एक अपना गैलप सर्वे अपना कराओ और उस गैलप सर्वे के अंदर इमरान खान और मौलाना फजल रहमान का, मैं आपको बताऊं कि 5% भी मौलाना साहब का वो नहीं आया। अच्छा सैर साहबा, चले सैर साहबा के मैं इस वक्त भी मुल्क के अंदर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उसमें टॉप पे है। आज भी लोगों का फेथ, उसकी ऑनेस्टी, उसकी हर चीज के ऊपर उसको लोगों को यकीन है, नेक नियति, और जब नेक नियति होती है, ऑनेस्टी होती है, तो खुदा की भी ब्लेसिंग उसके ऊपर होती है। सैर साहबा से मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर साहब, फरीद, आप ये प्रोग्राम आज रिकॉर्ड पे रख लें जी। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले कश्ती छोड़ के जाने वाले भी डॉक्टर रमेश होंगे, सबसे पहले पीटीआई की कश्ती छोड़ के जाने वाले भी डॉक्टर रमेश होंगे। आप ये बात आज रिकॉर्ड पर लिख लें। ये जो 5 साल और 5 साल की बात कर रहे हैं, ये 5 साल, देखिए हमारी तो ख्वाहिश है कि हर जमहूरी निजाम का तसलसल चले, चाहे वो ऐसा लंगड़ा लूला निजाम नहीं हो जो कि कोई और ला के बिठाया हो किसी और ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की कि ये ना हो कि पार्लियामान पे शपकुन मारी जाए। लेकिन ये जो आज बैठे तारीफे और कलाबे मिला रहे हैं, ये जो अपने अंदर जितने रंजीदा हैं, ये इनके अपने अंदर जितने दुख पल रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले पीटीआई की कश्ती छोड़ के जाने वाले भी डॉक्टर रमेश होंगे। लेकिन सैर साहबा चले, ये डॉक्टर साहब से मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात और की, उन्होंने कहा एपीसी होगी नहीं, जरदारी साहब भी चले जाएंगे, शहबाज साहब भी चले जाएंगे। देखिए बात ये है कि वो जो ना, मैंने फिर ये कहा ना कि इनको ये सोच, इनका सोचता भी कोई और है, ये सोच भी इनकी अपनी नहीं है, ये इनको सोचता भी कोई और है। तो बात यह है कि जरदारी साहब ने जाना होता तो वो इस मुल्क में ना होते, जरदारी साहब ने अगर समझौते करने होते तो वो आपको नजर ना आते। वो आसिफ अली जरदारी है जिसने 11 साल अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल जेल की सुराखों के पीछे की इलेक्शन ऐसे ही हार गए। रमीश से तो जहांगीर तरीन की बात मानेंगे? देखिए उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जो टैंकी है फ्यूल वाली, वो गाड़ी से अलग हो गई है। मैं साहब की तरह आता हूं, फिर मैं आपकी तरह आता हूं साहब। बात यह है कि जमहूरी निजाम को गैर मुस्तहकम हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके लिए कुर्बानियां भी हमने दी हैं। ये ऊपर से जो आए हुए लोग हैं ना, इन्होंने नहीं दी। ये जो लिफ्ट से आते हैं, उनको कोई और लाता है और कोई तौर लाता है, ये
वो ये लोग समझ सकते हैं, ये लोग इमलाक जला सकते हैं, इनके पीछे लोग खड़े होकर कहते हैं जी आप बिल जला दो कोई पूछेगा नहीं, इनको कहते हैं कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ये अपने अलग अलग होके बैठ के देखें तो आज जितनी तबाही हो चुकी है मुल्क के अंदर, ये लोग शायद आईना भी ना देख अच्छा सकें। सर साहब, डॉक्टर साहब ने कहा एपीसी, आप मुझे बता दीजिए एपीसी एपीसी होगी होने जा रही है, कब तक? एपीसी होने जा कब तक? रही है, कब तक? एपीसी हो रही है, बस मैं समझती हूँ कि अगले महीने तक एपीसी हो जाएगी। यानी ईद उल अजहा कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी? बस आप ये देख लें कि पता नहीं कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी या कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। कुर्बानी तो ये हो चुकी है, कुर्बानी तो ये हो चुकी है, इसलिए कि इनको कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। अब ये एक झूठा ढांचा खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि अब गिरा तो तब गिरा। ये आपको नजर नहीं आ रहा? ये आज लेकिन डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं खान साहब का सर्वे करा लें, आज भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। वो यकीन बिल्कुल इतनी ज्यादा है कि लोग जूतों के हार पहना रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ को तहरीक आजाद कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ये समझती, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चश्मा है ये सबसे पहले डॉक्टर रमेश का उतरेगा कि जो इनको नजर आ रहा है कि इनकी आज भी बड़ी पॉपुलैरिटी है। शॉर्ट इनके आंसर ले अपने लेते हैं। लोग जब आपके अपने अंदर से अपने घर से आवाजें आ जाए तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी ठीक- कहाँ है, ठीक है। पॉपुलैरिटी किस चीज के ऊपर। राइट सर साहबा, डॉक्टर साहब वेरी शॉर्ट आंसर। सर साहबा ने कह दिया ऑन रिकॉर्ड लिख लें, अगर जब भी ये खतरा हुआ कश्ती छोड़ के सबसे पहले जाने वाले डॉक्टर रमेश कुमार होंगे। जवाब मुख्तसर दीजिएगा, लास्ट कमेंट लूंगा मुफ्ती साहब से। मैं समझता हूं इसको पता नहीं है, और मैं चेयरमैन सेनेट की, आपने इलेक्शन भी देखी, आपके ही किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने वोट हो रहे हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि आसिफ जरदारी साहब पहले अमेरिका जा रहे हैं और उनको अमेरिका जाने के का जो है वो लगा पड़ा है और कोई एपीसी नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ ये कि आज भी मैं आपके प्रोग्राम के आखिरी में भी ये कह रहा हूँ कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, अगले 5 साल की बात करें और कोई जो है वो हुकूमत नहीं इस वक्त पाकिस्तान। अच्छा अगर ना कर सके तो आप पार्टी में रहेंगे? देखिए मैं खान के साथ हूं, मैं सही काम को, मैं कभी करप्शन को डिफेंड नहीं करूंगा, मैंने माजी में भी डिफेंड नहीं की। मैं जो ईमानदारी, जो सही चीजें हैं उसको डिफेंड करूंगा, जो गलत चीजें होंगी मैं खान साहब के सामने भी बोलता हूं। मैं जब नवाज शरीफ के सामने था तब भी मैं बोलता था। आज अगर मौलाना अता रहमान ने मेरे साथ के में अकरम दुरानी के टाइम पे अच्छा किया, मैं आज भी उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं उन चीजों में नहीं आता, सही काम को सही कहता हूं, गलत चीज को गलत कहता हूं। मगर ये कहना, गुण गाना, सिर्फ प्रेसिडेंट ये बातें करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपने ज़मीर के साथ चलता हूं, गलत चीजों को डिफेंड नहीं करता। रिकॉर्ड पे रख ले, रिकॉर्ड है जी सर साहब, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड है। ये डॉक्टर साहब की बात भी ऑन रिकॉर्ड है और आपकी बात भी ऑन रिकॉर्ड है। मुफ्ती साहब इन 10 सेकंड्स लास्ट वर्ड्स के सर, मजीद आप मुझे बता दें, कुर्बानी ईद उल अजहा से पहले ही मामलात कुछ हो जाएंगे या ईद उल अजहा के बाद मामलात आप देख रहे हैं? खैर ये तो मैं कमिट नहीं करूंगा कि आगे या पीछे है, लेकिन है करीब है। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि 2-3 महीने ज्यादा हैं, हाँ। बिल्कुल करीब है। अब मैं कहता हूं कि वजीर आजम की तलाश जारी है, नए वजीर आजम की तलाश जारी है। ये रमेश को भी पता है, बोलेंगे नहीं अलग बात है। चले इनके लोग टूट कर जाएंगे, इस्तीफा देंगे, गिनती नहीं होगी और ये अखलाकी तौर पर वजीर आजम रहने के मुफ्ती कवायद साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, सहर कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।